Welcome to the Mluka Academy. Myself Anil Kumar Skija. So today we'll take up the topic lines and angles of class 9th. Topic is lines and angles. So now we have studied almost all the properties of lines and the various angles formed by intersecting these lines. For example, parallel lines, we make the corresponding angles, then vertical opposite in case of the intersecting lines. Then other angles alternate, co-interior and so on. So based on those things which we did, we have got certain questions which are to be done. So first question for today is, this is from NCERT. It is given that we are given this figure. This figure is given to us. This is X, this is Y, and this is Z. This angle is 64 degree. And YQ is the bisector of this angle. This angle is bisected, that is 1 and 2 are equal. We want to find what we want to find here. We have to find XYQ and reflex PYQ. Reflex so what we have to do, so let us identify the angles which we want to find. First is XYQ. You want to find XYQ. We know that this is 64, but we want to find angle 1 or angle 2 which both are equal. Now what we will do, we know that the sum of these two, 1 and 2 are equal, so let these be X. 1 is equal to 2 is equal to X, and we know that the sum of all this 2x plus 64 will be equal to 180 degree. 2x will be equal to 180 degree minus 64 degree. So 2x is equal to 116 degree. X will be equal to 58 degree. So this is equal to 58 degree. So all these angles are, this is 58 degree, this is 58 degree. Now we can find all the angles which we want to find. First is XYQ. XYQ is your XYQ. We see that this is the sum of 64 and 58. So add them, we will get the answer. This is 8 and 4 is 2, and this is 11 and 12. So this is 122 degree. And next we want to find reflex of PYQ, and we know very well that when you want to find the reflex of an angle, reflex PYQ can be given as 360 degree minus PYQ. So this is 360 degree minus 58 degree, which is 302 degree. So this is the required answer for this question. The next is, in figure, sides BC, CA and BC are produced to PQ. So we are given another figure, question second. In this we are given that this is ABC, BA is produced to P and CA is produced to Q. This is produced to Q. Then what we have got, this angle is 110 degree,
Now there is one point on BA D such that if we join this, then we have got BDC, this angle is Z, BCD is 25, and this angle Z which we want to find here. What else? This is X, this also, ये भी हमें पता करना है, और ये Y, ये भी पता करना है, and we are given this is also extended to R, and this angle is 125 degree. So what we need to find here, we need to find X, Y, Z. To find X, Y, Z. So likewise, if we see that this is a complete angle of 180 degree, out of which we know two angles, so we find first angle Y, this will be equal to 180 degree minus 125 plus 25. हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास एंगल Y आ जाएगा. तो क्या आएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री. सो एंगल Y इज इक्वल टू, ये हमारा 30 डिग्री हो जाएगा. सो दिस इज 30 डिग्री. नाउ व्हाट एल्स वी कैन फाइंड हेयर, दिस इज योर 110. नाउ यू गेट दिस एंगल एज कंप्लीट एंगल. Now next is 125 and this is 30. What else we are given? Now we can find this angle also. Total is 180. Now this will be 70 degree. This angle will be 70 degree. Now we can find X. Now in triangle ABC, from triangle ABC we can find X angle will be equal to, इन दिस एंगल में क्या करेंगे हम, 180 में से क्या क्या माइनस करेंगे, एक तो 70 डिग्री माइनस हो जाएगा, एक 30 और 25 विच इज 55. सो दिस विल बी 180 माइनस, ये बन जाएगा हमारा 125. सो दिस विल बी 55 डिग्री. सो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 55 डिग्री. सो दिस विल बी एक्स. नाउ वी वांट टू फाइंड जेड. Now Z clearly is the exterior angle in which two anterior angles are given. So you can check that in BDC, in triangle BCD, angle Z किसके बराबर आ जाएगा, exterior angle is equal to sum of two interior angles, that is 55 plus 25 which is 80 degree. रीज़न अगर हमने लिखना है तो इसका क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. तो ये हम बहुत बार लिख सकते हैं, तो इसमें लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. ये इस ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल BCD एक्सटीरियर एंगल इज, ये एंगल Z जो एक्सटीरियर एंगल है, दो इंटीरियर एंगल्स X और 25 हो जाएंगे. सो दिस विल बी योर आंसर. देन नेक्स्ट इज AD इज पैरेलल टू BC. वी आर गिवन वन मोर फिगर. सो ये हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. ये हमें दिया है A, B, C, D, E. इसमें एंगल्स कौन कौन से दिए हैं, एक तो इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ये एंगल दिया है हमें, ये तो X है, ये Z है और ये Y है और ये 32 है. दिस इज 32 और ये हमारा 70 है. और क्या दिया, ये हमें 62 दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, AD पैरेलल टू BC. तो निकालना क्या है इसमें हमने, तो ये यहाँ से अलग हो गया.
इसमें हमें पता करना है एक्स वाई जेड, फाइंड एक्स वाई जेड। सो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, you can do it very easily. So I will use different color pen so that you can identify the various options. Now हमें क्या दिया गया है, AD is parallel to BC, ये AD है, ये BC है, ये इसकी ट्रांसवर्सल होगी, Y और X क्या हो जाएगा, Y is equal to X, क्योंकि ये दोनों ही हमारे कौन से एंगल हैं, को एक्सटीरियर एंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एंटीरियर एंगल्स। सो इसलिए ये दोनों बराबर होंगे। अब इन दोनों को निकालते हैं, ये हमारे पास 70 है, ये सारा कंप्लीट कितना हो जाएगा 180, इसलिए ये कितना बच गया 110। अगर हमारे पास एक एंगल 70 है, दोनों का सम हमारे पास 180 है, तो दूसरा कितना आएगा 110। अब इस ट्रायंगल में देखते हैं BCD में, तो क्या होगा, x किसके बराबर हो जाएगा, 180 में से क्या माइनस करेंगे हम, 110 और 32, ये हो जाएगा 180 माइनस 142, ये कितना आ गया 38। सो ये एंगल हमारा 38 हो गया, ये भी 38 हो गया। सो दिस विल बी x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 38 डिग्री। सो ये दो एंगल्स हमने एक फॉर्मूले से ही निकाल लिए। अब हमने z निकालना है, z के लिए क्या है, दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे ADB, तो उसमें हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई 38, एक 62 है। सो एंगल z किसके बराबर आ जाएगा, z विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, एक तो 62 करना है, एक हमारे पास जो वैल्यू निकाली है y की क्या वैल्यू निकाली हमने 38। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या है 38 डिग्री। सो इस ट्रायंगल में हमने फाइंड किया है, ये z कैसे आएगा, 180 में से इन दोनों को माइनस कर देना है, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 100 कंप्लीट। सो दिस विल बी 80 डिग्री। सो z की वैल्यू आ जाएगी 80 डिग्री। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले इसको क्लीन करना है हमें बोर्ड को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें क्या है, द साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC आर प्रोड्यूस्ड टू ED। सो एक हमारे पास ट्रायंगल है ABC, तो ये हमारे पास D और E तक हमने एक्सटेंड कर दिया इसको। अब जो B और C के बाइसेक्टर्स है वो O पे मीट करते हैं, दैट इज बाइसेक्टर्स ऑफ एक्सटर्नल एंगल्स B एंड C मीट एट O। तो हमने क्या शो करना है इसमें, एंगल BOC किसके बराबर है, टू प्रूव ये इसके बराबर है एंड दिस इज, दीज टू आर इक्वल। इसमें हमने प्रूव करना है एंगल BOC 90 माइनस एंगल A/2। सो दिस वी हैव टू प्रूव।
सो बहुत इजी है, इसमें हम क्या करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों एंगल इक्वल हैं। सो फर्स्ट पहले हम क्या करते हैं, डी बी सी किसके बराबर होगा, एंगल डी बी सी, ये डी बी सी है किसके बराबर होगा, ए और सी के। इसी तरह से ई सी बी किसके बराबर होगा, ये भी होगा हमारा ए और बी के। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, एडिंग डी बी सी प्लस ई सी बी इज इक्वल टू एंगल ए 2 बार आ जाएगा, एंगल बी, अब इसको ऐसे ही लिखते हैं हम, एंगल सी, और ये दूसरी बार जो अलग से लिख लिया हमने, तो ये सारा क्या बन जाएगा 180 डिग्री। दिस विल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ए। अब इसको हाफ कर देते हैं, डिवाइड बाय 2, वी गेट, तो क्या आ जाएगा इसमें, अगर इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा हमारा डी बी सी है जो, उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, और ई सी बी है उसको भी डिवाइड बाय 2 कर देंगे, इज इक्वल टू 180 बाई 2 90 हो गया, प्लस एंगल ए बाय 2 आ जाएगा। अब डी सी बी अपॉन 2 कितने के बराबर आ जाएगा, लेट अस अज्यूम दिस एंगल टू बी 1, दिस टू बी 2। अब ये डी बी सी सारा कंप्लीट एंगल है, इसको हाफ करेंगे, हम ये बाहर वाला पार्ट भी ले सकते हैं, अंदर वाला भी ले सकते हैं, तो इसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ, इसको एंगल 1 ले लेते हैं, प्लस ई सी बी में क्या है, ई सी बी, इसमें भी हाफ करेंगे तो एंगल 2 ले सकते हैं, बिकॉज ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है, तो वी विल गेट एंगल 2 फ्रॉम हेयर, दिस इज इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाय 2। अब अगर हम बी ओ सी ट्रायंगल की बात करते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी, यहीं पे कर लेते हैं, इन ट्रायंगल बी ओ सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल बी ओ सी किसके बराबर होगा, 180 के। अगर 1 प्लस एंगल 2 किसके बराबर हो जाएगा, इनकी वैल्यू निकालनी तो किसके बराबर होगा, बी ओ सी दूसरी साइड पे चला जाएगा, सो दिस विल बी 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। ये कैसे लिखा, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, ओके, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, क्या आ जाएगा 90 प्लस एंगल ए बाय 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। ये हमने क्या किया, फिर से देखो इसको, ये हमारा है 1 प्लस 2 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये 2 एंगल हमारे पास है, तीसरे एंगल की वैल्यू क्या आएगी, तीसरे एंगल को माइनस कर देंगे, दोनों का सम आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने क्या निकाला है 1 प्लस 2 किसके बराबर है, 90 प्लस मेन एंगल जो a बाई 2 के बराबर है। अब इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं ना, अगर लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी, इक्वेटिंग राइट हैंड साइड, ओके, दोनों की हमने राइट हैंड साइड को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब क्या आएगा, ये आ गया, अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, बी ओ सी को इधर ले आओ, ये बन जाएगा बी ओ सी प्लस में 180 डिग्री माइनस 90 माइनस ए बाय 2, सो एंगल बी ओ सी किसके बराबर आ जाएगा, 90 माइनस एंगल ए बाय 2, सो दिस इज व्हाट वी वांट टू शो, हेंस प्रूव्ड। सो यही हमने शो करना था, यू कैन चेक दैट वी हैव टू शो दिस, यही प्रूव करना था, बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2, वही हमारे पास आ गया बी ओ सी इज इक्वल टू 90 माइनस ए बाई 2। ये जो वाला एंगल है 90 के में से इस एंगल का हाफ माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, वो हम करते हैं, सो वो इसके एंटायरली डिफरेंट है, वी विल बी डूइंग ऑन द सेम बेसिस। अब क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या करना है हमने, इसमें भी हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी,
ए बी सी। अब इसमें हमारे पास जो एंगल बाइसेक्टर वो इंटरनल है, यहाँ पे मीट कर रहे हैं ओ पे, दे आर मीटिंग एट ओ। अब हमने क्या शो करना है, ये एंगल इसके बराबर है, ये तो है ही गिवन है हमें, ये इसका बाइसेक्टर इसलिए ये दोनों एंगल भी इक्वल हैं। तो अब हमें क्या शो करना है इसमें, ये शो करना है एंगल बी ओ सी जो है उसमें 90 माइनस था, इसमें 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2 है। ये एंगल बड़ा है ना, ये एंगल उससे छोटा था इसलिए 90 माइनस आया, ये इससे बड़ा है, वी कैन चेक इट। सो दिस विल बी इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए बाई 2। सो अगेन वी विल बी परफॉर्मिंग द सेम प्रोसीजर। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट हम ट्रायंगल ए बी सी में लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर आ जाएगा 180 डिग्री। सभी को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ये लिख सकते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। डिवाइड बाय 2, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वी गेट एंगल ए बाई 2, एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो ये हमारे पास 90 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ए बाई 2 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, एंगल बी बाई 2, एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई 2। इसको एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। अब हमारे पास इन ट्रायंगल बी ओ सी में क्या है, ये हमारा एंगल बी बाई 2 है, प्लस ये हमारा एंगल क्या है, ये बी बाई 2, ये सी बाई 2 है, प्लस एंगल बी ओ सी, इनका सम कितने के बराबर है 180 डिग्री। वही जो वहां पे किया था वही इसमें करना है। अब क्या होगा, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। अब ये दोनों सेम हो गए, वी कैन चेक दैट लेफ्ट हैंड साइड आर इक्वल, so their right hand side would also be equal. Equating right hand side of two equations, for example this equation is 1, this is 2, equating right hand side of equation 1 and 2 we get, तो क्या आ जाएगा इसमें 90 माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल बी ओ सी। सो अब यही हमने किया, जो राइट हैंड साइड उनको इक्वल कर दिया, तो इससे क्या आ जाएगा, बी ओ सी को इधर ले आओ, ये हो जाएगा प्लस बी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर जाके माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो जाएगा एंगल ए बाई 2, तो क्या आ जाएगा एंगल बी ओ सी जो है 180 माइनस 90 डिग्री प्लस एंगल ए बाई 2। सो ये हमारे पास प्रूफ हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो यही हमने शो करना था इसमें। सो आगे चलते हैं इससे, बट बिफोर दैट वी हैव टू क्लियर द बोर्ड।
अब नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। AB parallel to CD, P is a point, AB parallel to CD, P यहाँ पे कोई पॉइंट है, तो हमने क्या शो करना है, ये कोई दो पॉइंट्स है, यहाँ पे हम ले सकते हैं, these points are B and D, यही है। तो ये हमारा B है, ये D है, हमने ये शो करना है, लेट दिस बी DCA, A इधर है, ये C है। तो ये किसके, हमने क्या शो करना है, टू प्रूव ABP प्लस BPD प्लस PDC ये 360 के इक्वल होना चाहिए। सो बहुत इजी है, वन कैन इजीली प्रूव इट। गिवन हमें क्या है, AB पैरेलल टू CD, सो ये हमें पैरेलल दिया। सो इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रा PQ पैरेलल टू, कंस्ट्रक्शन में क्या है, ड्रा PQ पैरेलल टू AB, सो यही बहुत है, which is parallel to CD. Okay. Now we mark these angles as, for simplifying our calculation, 1, 2, 3, 4. Since AB is parallel to PQ, ये दोनों लाइन्स पैरेलल है, तो 1 और 2 का सम क्या होगा, because these are co-interior angles and this is a property of parallel lines that sum is equal to 360 degrees. So this is equal to 180 degree. And again we know that PQ is parallel to CD. So then angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degree. Again co-interior angles are angles have sum 180 degree. Okay. Now adding these two, when we add these two, what we will get, 1 angle 2 angle 3 angle 4 is equal to 360 degree, and 2 and 3 is, we get the required angle, that is angle 1 is angle ABP plus 2 and 3 is angle BPD plus angle PDC. This is 360 degree. So this we want to prove. The next question in this is, in the figure PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other. So then next is, this is question 5th. Then question 6th. So there are two mirrors PQ and RS. So these are mirrors which are placed parallel to each other, PQ and RS, they are parallel. An incident ray AB, ये incident ray है AB, strikes PQ, so we are given PQ is parallel to RS. Strikes AB, mirror PQ at B, the reflected ray moves. Now this is the reflected ray moves and strikes at C, RS at C, then reflected, it goes to the, reflects back along CD. So this will go.
So normal to the mirror, let us take these are the normal to the mirror, BL, and this is CM. Let this angle be, this is 3, this is 4, this is 1, and this is 2. What we need to show that to prove AB is parallel to CD. AB और CD को पैरेलल प्रूव करना है, बहुत इजी है. तो इसमें हमें पता है PQ is parallel to RS, so their perpendiculars are also parallel. So we can say that BL is parallel to LM CM. Why? Because if lines are parallel, normals or perpendicular, normals to the parallel lines या parallel mirrors are also parallel. So इसलिए हम क्या कह सकते हैं, BL और CM हमारे पास parallel है, तो क्या होगा, 3 और 2 इक्वल होंगे, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2. अल्टरनेट एंगल्स, डबल एंगल 3 इज इक्वल टू डबल एंगल 2. तो ये क्या हो जाएगा, अब हमें ये भी पता है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. सब डबल एंगल 3 क्या हो जाएगा फिर, ABC इज इक्वल टू और BCD, ये कितना डबल एंगल 2 हो जाएगा, BCD. अब दोनों इक्वल हैं तो हमें पास फिर वही आ जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD बिकॉज ऑफ वाई. क्या रीजन है इसका, ये दोनों जो एंगल हैं ये इसके क्या बन गए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स and are equal so ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है, इक्वल भी है, तो क्या हो जाएगा, AB इज पैरेलल टू CD. यही हमने इसमें शो करना था. सो ये दिस वाज द टुडेज वर्क, देन रेस्ट वी विल टेक अप टुमारो. सो थैंक यू फॉर लिसनिंग द लेक्चर. आई थिंक यू विल बी revising the lectures at your place, and in case you have got any problem, just contact to us. Thank you.